آپ کو بتائیں کہ شہری اولیاء کے باسیوں کی صحت کا خیال رکھنا اولین ترجیح۔ ملتان انتظامیہ کا غیر معیاری پانی فروخت کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ نیوٹریشن کمپنی کمیٹی اجلاس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی سے کمرشل واٹر فلٹریشن پلانٹس کی فہرستیں طلب کر لی گئیں۔ اسکولوں کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا پانی ٹیسٹ کرانے کی بھی ہدایات جاری۔ ملتان میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی آبدہ فرید کی زیر صدارت مال نیوٹریشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کمرشل بنیادوں پر لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا جائزہ لیا گیا۔ انتظامیہ نے پنجاب فوڈ اتھارٹی سے کمرشل واٹر فلٹریشن پلانٹس کی فہرستیں طلب کر لی۔ مکمل ہوم ورک کے بعد غیر قانونی اور غیر معیاری کمرشل واٹر فلٹریشن پلانٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اجلاس میں اسکولوں میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹس کا بھی جائزہ لیا گیا اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی لیبارٹری سے اسکولوں کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا پانی ٹیسٹ کروانے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے ضلع کے تمام کمرشل واٹر فلٹریشن پلانٹس کی پڑتال کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انقلابی اقدامات۔ جنوبی پنجاب میں ڈبل ڈیکر بسیں فراٹیں بھریں گی۔ سیاحت کے فروغ کے لیے بہاولپور، ڈی جی خان اور ملتان میں ٹورسٹ بس چلے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے خوشخبری، ڈبل ڈیکر بسیں فراٹے بھرنے کے لیے تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیاحت کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات اٹھا لیے۔ ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ نوابوں کے شہر بہاولپور، وزیر اعلیٰ کے ضلع ڈیرہ غازی خان اور شہر اولیا میں ٹورسٹ بس سروس چلے گی۔ ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں 6 سیاحتی مقامات کو پروموٹ کیا جائے گا۔ یہاں 35 کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر کی جائیں گی۔ سڑکوں کی تعمیر پر 83 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ دوسرے مرحلے میں میاں والی، جنوبی پنجاب کے کشمیر اور کوہ سلیمان میں بھی سیاحتی مراکز متعارف کروائے جائیں گے۔ گھروں میں آئسولیٹ مریضوں کی حالت کیسی ہے؟ محکمہ صحت بہاولپور لاعلم نکلا۔ گھروں میں آئسولیٹ مریضوں کی معلومات رکھنے کے لیے تحصیل لیول پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنا دیا گیا۔ ملتان میں کرونا وبا کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں۔ زکریا یونیورسٹی نے مالی مسائل پر قابو پانے کے لیے ہاسٹل بند ہونے کے باوجود طلبہ سے مکمل ہاسٹل فیسیں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاسٹل بند ہونے کے باوجود طلبہ کو ٹیلی فون، گیس روم چارجز، الیکٹریسٹی، کامن روم چارجز اور نیوز پیپر تک کی فیس وصولی کے لیے واؤچر جاری کر دیے گئے۔ خسارہ کم کرنے کے لیے طلباء و طالبات سے ہاسٹل کی فیسیں مکمل طور پر وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یونیورسٹی کی جانب سے جاری کیے گئے فیسوں کے واؤچر دے کر طلباء پریشان ہو گئے۔ ہاسٹل فیس جمع نہ کرانے پر الاٹمنٹ منسوخ کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے۔ جیسا کہ لاک ڈاؤن ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بند ہیں، ہاسٹل بھی بند ہیں، نہ ان کا بل کا کوئی خرچہ ہو رہا ہے، نہ کوئی ریزیڈنس پہ کوئی خرچہ ہو رہا ہے۔ تو مطالبہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سے کوئی ایسے ڈیوز نہ لیے جائیں۔ اگر آن لائن کلاسز ہیں تو جسٹ ٹیوشن فیس لی جائے۔ ریزیڈینشیل فیس کا کوئی میرے خیال سے خرچہ نہیں ہو رہا تو نہ لی جائے میرے خیال سے۔ واؤچر میں روم کا کرایہ 7200 روپے، بجلی کے 7500 روپے، میڈیکل فیس 880 روپے، سوئی گیس چارجز 3600 روپے شامل ہیں۔ ٹیلی فون کے 550 روپے، مرمت کے 1650 روپے، کامن روم کی فیس 330 روپے وصول کی جائے گی۔ ذکریہ یونیورسٹی کے میل اور فیمیل طلباء کے لیے مختص ہاسٹلز میں 10,000 کے قریب طلباء و طالبات رہائش پذیر ہیں۔ ذکریہ یونیورسٹی کورونا کی پہلی لہر میں بھی 6 ماہ بند رہی۔ گزشتہ ماہ سے ذکریہ یونیورسٹی کے تمام ہاسٹلز کو دوبارہ خالی کرا لیا گیا تھا۔ ذکریہ یونیورسٹی حکام کا کہنا ہے کہ طلباء سے ہاسٹل کی سالانہ فیس وصول کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ذکریہ یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈز کوریج سے روکتے رہے۔ کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ ابھی آپ کو بریکنگ دیں۔ آر پی او ملتان کا تمام ٹرینی سب انسپیکٹر ایس ایچ اوز کو ہٹانے کا مراسلہ جاری۔ ملتان کے 10 تھانوں سمیت ریجن بھر میں ٹرینی سب انسپیکٹر کے منسوخی آرڈر جاری کر دیے گئے۔ ٹرینی سب انسپیکٹرز کی تعیناتی کو فوری منسوخ کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ آر پی او نے سی پی او ملتان سمیت تمام ڈی پی اوز کو مراسلہ بھجوا دیا۔ ٹرینی سب انسپیکٹر سے 3 روز میں ایس ایچ او شفٹ واپس لی جائے۔ مراسلے میں ایسا کہا گیا ہے ٹرینی سب انسپیکٹرز کی جگہ اہل افسروں کو تعینات کیا جائے گا۔ مراسلے میں ایسا لکھا گیا ہے آر پی او ملتان کا تمام ٹرینی سب انسپیکٹرز ایس ایچ اوز کو ہٹانے کا مراسلہ۔ تمام آر پی او نے سی پی او ملتان سمیت تمام ڈی پی اوز کو مراسلے جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹرینی سب انسپیکٹر سے 3 روز میں ایس ایچ او شفٹ واپس لی جائے، مراسلے میں کہا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے تمام پاور سیکٹر اسکیموں کو 31 دسمبر تک مکمل کرنے کے احکامات دے دیے۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت پاور سیکٹر اسکیموں بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ 1 جنوری کو جائزہ اجلاس لے کر رپورٹ پاور منسٹری کو بھیجی جائے گی۔
डिवीजन जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर स्कीम्स के बारे में जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर ने तमाम स्कीम्स 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया। 1 जनवरी को जायजा इजलास लेकर रिपोर्ट पावर मिनिस्ट्री को भिजवाई जाएगी। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि पावर सेक्टर स्कीम्स का इल्तवा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैप्को अफसरान फील्ड विजिट करके मसाइल के बारे में इंतजामिया को आगाह करें। इजलास में एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू अरशद गोपान, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान खाकेवानी, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल मोहम्मद अरफा, मैप्को अफसरान और डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर्स डेवलपमेंट ने शिरकत की। बच्चा पार्टी के लिए खुशखबरी है। पीएचए मुल्तान का तमाम पार्कों में झूले लगाने का ऐलान। छोटे बच्चों के लिए सीसा समेत दीगर झूले लगाए जाएंगे। नए झूलों के लिए इंजीनियरिंग ब्रांच 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। शहर औलिया में बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएचए ने तमाम पार्कों में झूले लगाने का ऐलान कर दिया। इस वक्त पीएचए मुल्तान के ज़रिए इंतजाम सिर्फ 15 पार्कों में बच्चों के लिए झूले मौजूद हैं। फैसले के मुताबिक 25 से ज्यादा पार्कों में छोटे बच्चों के लिए सीसा, मैरीगोल्ड समेत दीगर झूले लगाए जाएंगे। नए झूलों के लिए इंजीनियरिंग ब्रांच को हदफ सौंप दिया गया है। इंजीनियरिंग ब्रांच को 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में क्रिसमस के मौका पर 3 सस्ते बाजार लगाने का फैसला किया गया। मसीही बरादरी को सस्ती और मियारी अशियाए ज़रूरिया और अशियाए खरोनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चक, सतना, ML, सिकंदराबाद और मियांवाली में बाजार लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को 20 दिसंबर तक मुतल्लिका इलाकों में सस्ते बाजारों के क़याम की हिदायत कर दी। उन्होंने तमाम सरकारी, नीम सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के अफसरान को हिदायत की हैं कि मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस से कबल तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाए ताकि वो बेहतर अंदाज में क्रिसमस की खुशियां मना सकें। डीसी ने मुतल्लिका म्युनिसिपल कमेटीज के अफसरान को मसीही इबादत गाहों के गिरदोनवा में सफाई और इंस्पेक्टर सिक्योरिटी को इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। कभी आपको ब्रेकिंग दें, जतोई में साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी। शादी की तकरीब में डांस पार्टी पर पुलिस का छापा। पुलिस ने 3 डांसर और साउंड सिस्टम वाले को गिरफ्तार कर लिया है। साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी पर पुलिस ने कार्रवाई की। कामयाब कार्रवाई के नतीजे में डांस पार्टी पर पुलिस ने 3 डांसर और साउंड सिस्टम वाले को गिरफ्तार कर लिया है। साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी, शादी की तकरीब में डांस पार्टी पर पुलिस का छापा। पुलिस ने 3 डांसर और साउंड सिस्टम वाले को गिरफ्तार कर लिया है। जतोई से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। साउंड एक्ट की खिलाफवर्जी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मुल्तान में एसपी गुलगश्त तनवीर रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एसपी की शहर में कायम पुलिस नाके पर एहलकारों को हिदायत। एसपी ने स्ट्रीट क्राइम और मुलजिमान को काबू करने के लिए हिकमत अमली भी बताई है। एसपी गुलगश्त तनवीर रजा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, ये मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं। एसपी की शहर में कायम पुलिस नाके पर एहलकारों को हिदायत। एसपी ने स्ट्रीट क्राइम और मुलजिमान को काबू करने के लिए हिकमत अमली भी बताई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए गए रिलीफ की मुद्दत खत्म। शोबा तामीरात से वाबस्ता अफराद ने सहूलियात के लिए 1 साल मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। 31 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी गई सहूलत की मुद्दत खत्म हो गई। अब रिलीफ भी खत्म हो जाएगा। तामीरात से वाबस्ता अफराद ने कंस्ट्रक्शन शोबों को दी जाने वाली सहूलियात 1 साल मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा मुल्तान कंट्रैक्टर एसोसिएशन जुरेज इब्रार लोधी का कहना है कि हुकूमत ने जितने अरसे के लिए रिलीफ दिया उतने अरसे में एक मकान नहीं बनता। लाखों मजदूर और 130 छोटी इंडस्ट्रीज बिलावास्ता कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं। कंस्ट्रक्शन के शोबे के लिए जो हुकूमत ने रिलीफ दिया था वो अब हुकूमत वापस ले रही है। उससे जो है ना मजदूर तबके को, लेबर तबके को नुकसान है। तो इसको हुकूमत को चाहिए है इसको थोड़ा मजीद बढ़ाए। शोबा तामीरात से वाबस्ता अफराद का कहना है कि हुकूमत कंस्ट्रक्शन के शोबे को मजीद रिलीफ दे तो मईशत बेहतर होगी, क्योंकि इस शोबे से लाखों अफराद का कारोबार वाबस्ता है। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन की सूरत हाल में गरीब आवाम पिस गई है, ठीक है ना। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें आवाम जो है ना मजीद आगे दब जाएगी। तामीरात के शोबे से वाबस्ता अफराद का मजीद कहना था कि अभी तो बेहतरी आना शुरू हुई थी तो रिलीफ की मुद्दत ही खत्म हो गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान।
डेरा गाजी खान में नई सब्जी मंडी मुंतकिल करने के मामले पर आड़तियान एसोसिएशन की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पुरानी सब्जी मंडी से प्रेस क्लब, ट्रैफिक चौक और बम्बई चौक से जिला काउंसिल तक पैदल मार्च किया। डेरा गाजी खान में नई सब्जी मंडी मुंतकिल करने के मामला तूल पकड़ गया। आड़तियान एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें सब्जी मंडी के मुंतखब ओहदेदार और आड़ती शरीक हुए। आड़तियान एसोसिएशन ने पुरानी सब्जी मंडी से एहतजाजी रैली का आगाज किया, जो प्रेस क्लब से होती हुई ट्रैफिक चौक पर पहुंची, जहां रहनुमाओं ने खिताब किए। हम लोग जो मुल्तान रोड का ख्वाहिशमंद है, 5% सिर्फ अपनी मफाद की खातिर हम लोग को सखरवा रोड पे ले जाना है, उसका हम लोग मुखालिफ था, है और रहेगा। ये मार्केट कमेटी सेक्रेटरी और चेयरमैन से इन्हीं की बिल्ली बेका से सारा काम हो रहा है। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक चौक से मुंबई चौक तक पैदल मार्च किया और नई सब्जी मंडी की मुंतकली नामंजूर के नारे भी लगाए। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के पास थोड़ा बहुत जो सरमाया था वो हमने इधर लगाया हुआ है। गवर्नमेंट के कहने से ही हमने जमीन खरीद की थी और उनकी अपनी मदद आपके तहत हम वजन भी नहीं मारे, लोग हमारे से तावन नहीं कर रहे। मुजाहिरीन ने सब्जी मंडी मुंतकली के खिलाफ वजीर मुमलिकत जरताज गुल की खुली कचहरी में भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। डेरा गाजी खान में सब्जी मंडी की मुंतकली का मामला इस वक्त सड़कों तक निकल आया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत या इंतजामिया अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे, जिसके बाद खदशा ये है कि ये मामला मजीद बढ़ सकता है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल, डेरा गाजी खान। मुल्तान में टिम्बर मार्केट के बढ़ते मसाइल ताजरों और मजदूरों समेत शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। ताजरों ने इंतजामिया से मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया, जबकि जिला इंतजामिया ने तमाम मसाइल का हल मंडी के शहर से बाहर मुंतकली को करार दे दिया। एशिया की सबसे बड़ी मुल्तान टिम्बर मार्केट मसाइलिस्तान बन गई है। टूटी सड़कें और गंदगी के ढेर लगने पर ताजर परेशान हो गए। लटकती तारें किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। आग लगने के वाकयात से निपटने के लिए सिर्फ एक फायर ब्रिगेड मौजूद है। 1990 में बनने वाली पानी की टैंकी एक रोज भी काम न आ सकी। ताजर कहते हैं मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए और आसान शराइत पर प्लाट्स दिए जाएं। 2 दफा इंतजामिया से बातचीत हुई। इंतजामिया मौके पे कई दफा लोग आए भी और देखा भी अफसरान ने, लेकिन उसके मसाइल का हल नहीं हो सका। शहर में रमा साल 842 आग लगने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। आग लगे तो टिम्बर मार्केट की तंग गलियों में बाहर की फायर स्टेशन से मंगवाई जाने वाली फायर ब्रिगेड गाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, इस साल जो आग के वाकयात हैं वो 842 हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, जिनके ऊपर हमने विद इन 7 मिनट से भी कम टाइम में हमने रिस्पॉन्ड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल आग पर काबू पाया है और अपने ऑपरेशन को कामयाब किया है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि शहर की तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक आइंदा हफ्ते मुंतकली बारे फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो हमने कमेटी भी बनाई थी कि पहले वो एक्चुअल सर्वे कर लें कि हमारे इन मंडीज में तमाम जो एक्चुअल इसमें ट्रेडर्स हैं या जो दुकानदार एक्चुअल हैं, उनका हम एक पहले लिस्ट मरतब कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो आगे प्लानिंग करने की। एक तो ये फेज था। दूसरा फेज हमारे लिए है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड। जाहिर बात है कि ज़मीन बहुत कीमती है और उस पर भी हमारा काम जारी है। ताजरों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया मंडी के मसाइल को संजीदा ले और ताजरों की मशावरत के साथ मसाइल को हल करे। आग के बढ़ते वाकयात रिपोर्ट होने के बाद रिहायशी आबादियों को नुकसान से बचाने के लिए इस मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। जनूबी पंजाब मसालिस्तान बन गया। दुनियापुर वार्ड नंबर 1 के खाली प्लॉट कचरा कुंडी में तब्दील। उधर लियाकतपुर के खुले मैनहोल मौत को दावत देने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। दुनियापुर वार्ड नंबर 1 के खाली प्लाट कचरा कुंडी में तब्दील। इंतजामिया शहर का गंद इकट्ठा करके खाली प्लाट्स में डालने लगी। शहरियों का म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। यजमान बस स्टैंड कचरा कुंडी में तब्दील। इंतजामिया शहर भर की गंदगी स्टैंड के अतराफ में फेंकने लगी। ताफून और गंदगी से मुतद्दिद इमराज फैलने का खदशा। शहरी इंतजामिया की बेहसी पर शिकवा खुना। लियाकतपुर के खुले मैनहोल मौत को दावत देने
देने लगे। इंतजामिया ने ढक्कन लगाने की बजाय लकड़ी के डंडे लगा दिए। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। खानपुर में रेलवे इंतजामिया की गफलत, रेलवे स्टेशन जाने वाला मेन रोड टूट फूट का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मियां चन्नू के टी चौक में रिक्शा और रेहड़ी बानों की भरमार। गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड कायम कर लिया। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। ट्रैफिक जाम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात मामूल बन गए। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। जहानिया में नहर 3 आर के किनारे जर्नेली सड़क पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। सड़क पर तजावुजात की भरमार। माफिया ने मकानात और बाने तामीर कर लिए। शहरियों का इंतजामिया पर कब्जा माफिया की पुष्टपनाही का इल्जाम। डेरी खान में वफाकी वजीर जरताज गुल की जानिब से जिला काउंसिल हॉल में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। खुली कचहरी में बदनज़मी पैदा हो गई। तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने आकर मामलात को संभाल लिया। वजीर मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल कचहरी छोड़कर चली गए। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने मैपको मिसाइलिन की शिकायत सुनने के लिए डेरागाजी खान में खुली कचहरी का एहतमाम किया। खुली कचहरी शुरू हुई तो फोर्ट मंडरू से तहरीक इंसाफ के काउंसलर ने शिकायत की कि इनके खिलाफ बिजली चोरी का नाजायज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद डेरागाजी खान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ने खुली कचहरी में ही चोर चोर की आवाजें लगाना शुरू कर दी और जरताज गुल को कहा कि इस तरह के लोग बिजली चोरी करके तहरीक इंसाफ को बदनाम कर रहे हैं, जिस पर 2 ग्रुप खुली कचहरी में आमने सामने आ गए और मामला दस्तो गिरबान तक पहुंच गया। वाकये के बाद खुली कचहरी में अफरा तफरी फैल गई और इस दौरान पुलिस की भारी नफरी को बुला लिया गया। वजीर मुमलिकत जरताज गुल को वाकये के बाद महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया। कुछ वक्त के लिए वजीर मुमलिकत जरताज गुल मामले की संजीदगी को देखते हुए एक कमरे में माहौल ठंडा होने का इंतजार करती रही, लेकिन जब माहौल ठंडा ना हुआ तो जरताज गुल खुली कचहरी छोड़कर चली गई। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उमर, ब्यूरो चीफ, डीजी खान। मसूद मेट्रो मॉल मुल्तान में मेज़ान कुकिंग ऑयल की जानिब से इनामात की बारिश। लकी ड्रॉ के जरिए खुश नसीबों को गाड़ी, मोटर बाइक्स और दीगर इनामात दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। मेट्रो मॉल और मेज़ान घी एंड ऑयल्स की जानिब से लकी ड्रॉ की तकरीब मुनक्किद हुई। मेट्रो की ओपनिंग के बाद 29 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक शहरियों ने कुरानदाजी में हिस्सा लिया। ये मेट्रो की ओपनिंग के साथ हमने एक्टिविटी प्लान की थी मेज़ान ने कि मेज़ान फैमिली की प्रोडक्ट्स 1500 रुपए की जो बंदा यहाँ से खरीदेगा उसको एक कूपन हम इशू करते थे। उस कूपन के मुताबिक तकरीबन कोई यहाँ पे जो बाइंग हुई है उन कूपन्स का जब एंड रिजल्ट आया है तो उस एंड रिजल्ट के ऊपर हम लोगों ने ये ड्रॉ किया है। मेज़ान की मुख्तलिफ अशिया की 1500 की खरीदारी करने पर कस्टमर्स को एक कूपन देकर लकी ड्रॉ में शामिल किया गया। आज बजरिया कुरानदाजी 6 खुशनसीबों को इनामात देने की खुशखबरी सुनाई गई। 29 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक हमने इसको कैरी ऑन किया और इसमें 1500 की खरीदारी के ऊपर हर कस्टमर को एक कूपन दिया गया और वो लकी ड्रॉ में शामिल हुआ। और आज हमने फाइनली इसका लकी ड्रॉ किया और उसमें जो कुछ नसीब जो थे वो उनके इनामात निकले। 660 सीसी गाड़ी, 3 मोटर बाइक्स, माइक्रोवेव ओवन समेत बहुत से कीमती इनामात कुरानदाजी में शामिल थे। मेट्रो मॉल में मेज़ान की जानिब से की गई इस कुरानदाजी में आज 6 के करीब खुशनसीबों को इनामात दिए गए हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सलाम किसान दिन को सरकारी सतह पर पजीराई मिलने लगी। फातिमा फर्टिलाइजर के रीजनल सेल्स मैनेजर जुनैद खान बादुज़ई कहते हैं ये दिन किसानों की हौसला अफजाई और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी साबित होने वाला किसान जो खुश्क मट्टी को लहलहाते खेतों में तब्दील कर देता है। 18 दिसंबर 2019 को किसान को सलाम पेश करने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल कर रहा है। फातिमा फर्टिलाइजर के रीजनल सेल्स मैनेजर जुनैद खान बादोज़ई ने रोही को बताया कि इस दिन को मनाने का मकसद किसानों की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करना है। 18 दिसंबर को इनको खिराज तहसीन पर पेश करने के लिए दिन मनाने का ऐलान किया, जिसको ना सिर्फ हमारी कंपनी के प्लेटफॉर्म से बल्कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने भी पजीराई दी और उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। रीजनल सेल्स मैनेजर फातिमा फर्टिलाइजर का कहना था कि मर्दों के साथ साथ खवातीन भी खेतों में अपना पसीना बहाती हैं ताकि पाकिस्तान के बासी पेट भर कर रोटी खा सकें। फातिमा फर्टिलाइजर ने किसानों के साथ नाइंसाफी का इजाला किया। आप इसके वर्सेस दूसरी कम्युनिटीज को देखें, बिजनेसमैन को देखें,
باقی کمیونٹیز کو دیکھیں تو انہوں نے بہت ترقی کی ہے، جبکہ یہ وہ کمیونٹی ہے جو عرصہ دراز سے اپنا خون اپنا پسینہ اس مٹی کے اندر صرف کرتے ہیں، لیکن اس کے متبادل ان کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ ریجنل سیلز مینیجر جنید خان بادوزی کا کہنا تھا کہ فاطمہ فرٹیلائزر کسانوں کے مسائل کے سدباب کے ساتھ نیا لاہ عمل بھی تیار کرتی ہے، جس سے زراعت کو فروغ اور کسان خوشحال ہوگا۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی سٹرس فوڈ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور دسمبر کے درمیان میں کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ کٹائی کیسے ہوتی ہے، بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں فصیح اللہ۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی سٹرس فوڈ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور دسمبر کے درمیان میں اس کی کٹائی کا مرحلہ بھی جاری رہتا ہے۔ آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ کٹائی کیسے ہوتی ہے۔ شاہینوں کے شہر سرگودا کے باغات خوش ذائقہ پھل سے بھرے ہوئے ہیں۔ سرگودا میں کنو، موسمی، فلوٹر، ریڈ بلڈ اور مالٹے سمیت 60 سے زائد اقسام کاشت کی جاتی ہیں۔ باغات سے کنو توڑنا بھی ایک فن ہے۔ جنوبی پنجاب خصوصی طور پر ملتان سے مزدور کنو کے سیزن میں سرگودا آ جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زائد مزدور 3 سے 4 ماہ تک باغات میں کنو کی کٹائی اور پھر پیکنگ تک کے عمل کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ مزدور کہتے ہیں کہ وہ یہاں پیکنگ کرتے ہیں۔ 1.5 سے 2 لاکھ مزدور کنو کے سیزن میں یہاں کام کرتے ہیں، جن سے انہیں مناسب پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁੜਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। मुल्तान सरगोदे चो जी 4-5 महीने लगदन किन्नू ते किन्नू अलहदा, शक्करी अलहदा, मौसमी अलहदा, माल्टा अलहदा, इन्हें करते छांडी करन, छांडी करते अलहदा पेटें भरदन, पेटें भरते वाला है गड्डी ते लोड करते बाहरले मुल्कें भी देंदन। शुरू तो आए हुए 5-6 महीने लगदन, 12वें महीने च असां लेबर पूरी करनी होंदी है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ वापसी मकसद है साड़ी 4थे महीने 3जे महीने च वापसी चले जाते हैं। सरगोदा में मौजूद 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां बेहतर क्वालिटी के हामिल किन्नू की पैकिंग करके बैरून मुल्क भेजती हैं। सिट्रस फूड की एक्सपोर्ट से ज़र मुबादला भी हासिल किया जाता है। किन्नू, मौसमी, फ्लूटर की कटाई का मरहला जारी है और इसके बाद तमाम सिट्रस फूड मंडी में सप्लाई होगा, जहां पर शहरी इसके रस भरे जायके से महजूज हो सकेंगे। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीह उल्लाह, सरगोदा। टीडी खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरियों में मुफ्त मास्क तकसीम किए गए। मुफ्त मास्क पुल डांट, मुल्तान रोड और कॉलेज चौक पर तकसीम किए गए। तफसीलात देखिए मौसम मुल्क की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में क़यादती काल पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से शहरियों में मुफ्त मास्क तकसीम करने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान के रहनुमा सरदार गुलाम अब्बास गुरजानी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में गरीब और मुस्तहिक अफराद में मास्क तकसीम किए गए ताकि बाहर निकलने वाले अफराद कोरोना वायरस से बच सकें। हमने ये डाट वाली पुल, ये 4 सूबों का संगम है। इधर 4 सूबों की ट्रैफिक भी गुजरती है। इधर मजदूर रिक्शे वाले हैं, रेडी वाले हैं और ताज़ी ये करते हैं अपना दुकानदार। इनको हमने कहा भी मजदूर तबके तक ये जो बीमारी आई हुई है, तो हमने जितना हमसे हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से हम ये कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुफ्त मास्क के हुसूल पर मजदूर और मुस्तहिक अफराद खुश दिखाई दिए। कहते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से ये काविश बहुत सी जिंदगियां बचाने का सबब बन सकती है। ये इनका एक अच्छा स्टेप है, जिसकी वजह से जो मतलब है कि एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब है कि जो बंदा नहीं भी खरीद सकता तो उनको मतलब है कि एक फ्री में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनका बहुत अच्छा स्टेप है। इनके बहुत शुक्रगुजार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुफ्त मास्क तकसीम करने की मुहिम 2 हफ्तों से डेरा गाजी खान और उसके मज़ाफात में जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किए जाने वाले इस इकदाम से न सिर्फ ऐसे लोगों तक मास्क जा रहे हैं जो खरीद नहीं सकते, बल्कि लोगों में इस वक्त मास्क पहनने की अवेयरनेस भी बढ़ रही है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मौसम मुल्क, डेरा गाजी खान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब और मुल्क भर में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। सख्त सर्दी में जहां मवेशियों की दूध की पैदावार में कमी वाक़या हो सकती है, वहीं मुख्तलिफ बीमारियों का मवेशी शिकार भी हो सकते हैं। लाइव स्टॉक फार्मर्स अपने जानवरों को सर्दी से कैसे बचा सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सराइकी वसेब में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। शदीद सर्दी की वजह से इंसानों के साथ साथ मवेशी भी मुतासिर हो सकते हैं। लाइव स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सर्द मौसम में मवेशियों के चारे का खास ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। जानवरों को सर्दी से बचाएं, उसमें वो अपना इन टाइम शाम के वक्त जानवरों को शेड के अंदर कर दें और तरपालें लगा दें, सुबह वो तरपालें उठा दें। माहिरीन का कहना है कि सर्दियों में बड़े मवेशियों को 2 से 250 ग्राम गुड़ खिलाना लाजमी है। डॉक्टर्स के मुताबिक रात का बचा हुआ पानी सुबह जानवरों को ना पिलाएं, क्योंकि पानी का दर्जा हरारत काफी कम हो चुका होता है।
जो बचा हुआ पानी होता है शाम का, वो अगले दिन सुबह वो ना उनको पीने दें जानवरों को, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है पानी का। सुबह नया पानी, ताज़ा पानी वो उनको ऑफर करें। माहिरीन के मुताबिक अगर शाम के वक्त मवेशियों को पेट भरकर चारा दें तो उन्हें सर्दी का एहसास कम होगा। कैमरामैन करार हैदर के साथ अथर लाशारी, मुल्तान। लियाकतपुर के शहरी का कारनामा, घर में हैचरी बना डाली, अंडों से बच्चे निकलवाकर हजारों रुपए कमाने लगा। मोहम्मद इनाम ने अपने कारोबार का आगाज कैसे किया, देखिए हसन महमूद की रिपोर्ट में। लियाकतपुर के शहरी ने महंगाई का हल निकाल लिया, घर बैठे हजारों कमाने लगा। मोहम्मद इनाम का कहना था कि वो चंद साल कबल सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुआ। इस दौरान घर में हैचरी बनाने का प्लान किया। मेहनत, लगन और मुसलसल जिद्दोजहद के बाद ऑटोमेटिक मशीन तैयार कर ली, जिससे मुर्गी, बत्तख, फार्मी चकोर और फार्मी बटेर के बच्चे निकलवा कर सेल करने लगा है। हैचरी से 1000 से ज्यादा अंडे रख कर बच्चे निकाले जाते हैं। अब हर माँ बड़ी आसानी से घर बैठे अपनी हैचरी से हजारों रुपए कमा लेता है। रोजगार है, आम घरों में फीमेल्स हैं, औरतें हैं, घरों में इस तरह की मशीनें रख के बच्चे निकाल सकती हैं। वो घरों के अंदर अपना रोजगार चला सकती हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। अगर किसी को इन चीजों की नहीं समझ आती तो हम इसको जरूर उनके साथ तावन करेंगे। मोहम्मद इनाम का कहना था कि खवातीन भी घरों में हैचरी बनाकर हजारों रुपए कमा सकती हैं। कैमरा टीम के साथ हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। उधर मियांवाली में मुतादिद किताबों के खालिक, मजहबी स्कॉलर और मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल सैयद नसीर शाह की 8वीं बरसी पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल बताएंगे अख्तर मजाज। मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद किताबों के खालिक, मजहबी स्कॉलर, मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल सैयद नसीर शाह की 8वीं बरसी पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मारूफ कानूनदान खालिद सईद एडवोकेट का कहना था कि सैयद नसीर शाह इल्म व अदब में नुमाया मकाम रखते हैं। शाह साहब ने एक अहद को मुतासिर किया है और ये उनकी तख्लीक की जबरदस्त कुव्वत और ताकत है कि मुसलसल उसके नए गोशे जो है वो पढ़ने वालों को, सोचने वालों को, उनके हवाले से काम करने वालों को मुतासिर कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद ने कहा कि इस्लाम और औरत के हकूक, इस्लाम और जिनसियात, मौसीकी की शरई हसीयत जैसी लाजवाल किताबों के बाद इस्लाम और दहशत गर्दी तरह की शायरी समेत 3 किताबें जल्द मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। सैयद नसीर शाह साहब जामे सियात शख्सियत थे। उन्होंने अदब की हर सूरत में तब आजमाई की और बड़ी खूबसूरत तख्लीकात जो है वो माशरे को दी हैं। उनका नाम जो है मियांवाली की पहचान है और हमारी ये काविश है कि सैयद नसीर शाह साहब का जो बाकी कलाम बचा हुआ है वो नस्र में है या वो शायरी में है, उनको मुजतमे किया जाए। मियांवाली के मारूफ शायर और 13 किताबों के मुसन्निफ मोहम्मद मजहर न्याजी का कहना था कि मियांवाली में अदब का रोशन चिराग सैयद नसीर शाह से है। एक इनकलाबी शख्स थे और हमेशा असर हाजिर को साथ लेकर चलते थे। मियांवाली को ऐसी शख्सियत पर फख्र है और आज मियांवाली में जो चिराग रोशन है तो मैं समझता हूँ कि सैयद नसीर शाह की बदौलत है। तकरीब में मारूफ शायरों के अलावा शहरियों की कसीर तादाद भी शरीक थी। इल्म व अदब के मैदान में एक बड़ा नाम सैयद नसीर शाह। गो आप आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस्लाम में औरत के हकूक, इस्लाम और जिनसियात, हमें सुन लो, मौसीकी की शरई हसीयत जैसी किताबों की सूरत में सैयद नसीर शाह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शहर औलिया के वासियों के लिए एक और एजाज। मुल्तान ताइक्वांडो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल पंजाब ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीत ली। पंजाब भर से 25 क्लबों ने हिस्सा लिया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। ताइक्वांडो अकेडमी के ज़ेर एहतमाम पंजाब भर के 25 क्लबों ने हिस्सा लिया। मुल्तान ताइक्वांडो ऑर्गेनाइजेशन ने बेहतरीन किक्स की बदौलत पहली, दिहाड़ी ताइक्वांडो लवर्स फैमिली ने दूसरी, जबकि लैया फाल्कन ताइक्वांडो अकेडमी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इंटरनेशनल कोच डॉक्टर ईसा काकड़ ने खुसूसी शिरकत की और नए खिलाड़ियों की सलाहियतों को सराहा। इस तरह इवेंट्स होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि यही आपकी एक नर्सरी है, यही बच्चे हैं। जूनियर भी यहाँ पे मौजूद है, सीनियर्स भी यहाँ पे मौजूद है, नेशनल प्लेयर्स भी यहाँ पे मौजूद है, इंटरनेशनल भी मौजूद है। तो जो जूनियर्स बच्चे हैं वो सीनियर्स को देखकर ही यहाँ पे उनसे सीखते हैं। चीफ ज्यूरी के फराइज इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर इम्तियाज हुसैन जट, जबकि ताइक्वांडो टेक्निकल ऑफिशियल्स नूर मोहम्मद लोरालाई, मोहम्मद जाहिद, हुसैन जमाल, अम्मार खान, जहूर हुसैन, फैसल जहां, शाहिद इफ्तिखार, अली इमरान, शहजाद मुगल और राना लियाकत अली ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। रेफरी के फराइज नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल शहजाद भट्टी, अली इमरान, शहजाद यूसुफ, शाहिद इफ्तिखार, जबकि फीमेल मुकाबलों की रेफरिंग के फराइज हसीना जमाल ने सर अंजाम दिए। हाल पंजाब ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में फीमेल खिलाड़ियों ने भी शिरकत की।
जो मैं आज बच्चियों को देख रही हूँ और हर बच्ची में अपना अपना टैलेंट है और वो अपने अपने टैलेंट से ही आगे बढ़ेंगी और बच्चों को चाहिए कि फीमेल्स को चाहिए कि इस फील्ड में आना चाहिए ताकि वो अपनी सेफ्टी कर पाएं और वो अच्छे से अच्छे खेल पाएं। फातिह खिलाड़ियों के साथ छोटी बच्चियों को भी एजाज़ी शील्ड पेश की गई। हारने वाले खिलाड़ी भी मायूस नहीं हुए, अगले साल नए अज़्म के साथ फिर मैदान में उतरेंगे। ऑल पंजाब ताइक्वांडो चैंपियनशिप नए टैलेंट को फरोग देने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना